ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر یس رام نگر چینل کو سبسکرائب کریں۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراس کلید کرم کشا اشرف نانگ دریا دریا بسین دارت دشمن میں شپر غمبا ذکر دوست دارت سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ امام مدد۔ آئیے موراب سب سے پہلے سرور کائنات تاجدار عرب و عجم گنبد خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا سرور کائنات تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی پوری غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بابا بلند درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا و ملجانا و شفیع قلوبنا و طبیب صدورنا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، سبحان اللہ۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ مسلمانوں، یہ پروگرام یہ عظیم الشان جلسہ عظمت والدین کانفرنس جو ہم اور آپ منا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اس پروگرام کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و مقبول عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے لوگو اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو جھٹک رہے ہو، تم کو ڈانٹ رہے ہو، تم یہاں تک کہ تم انہیں اف تک نہ کہو۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں نماز ادا کرتا اور میں نیت میں ہوتا، اگر میری ماں گھر سے بیٹھ کر مجھے آواز دیتی کہ اے محمد ادھر آؤ، تو میں نماز کو ترک کر دیتا، پہلے اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرتا۔ مسلمانوں ذرا غور فرماؤ، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا ہجوم لگا ہوا ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، سرور کائنات اپنے صحابہ کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہم کلامی کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اچانک سرور کائنات کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی نورانی چادر، کالی کملی والی چادر اپنے کاندھے مبارک سے اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد مسجد نبوی میں بچھا دیتے ہیں۔ اب سارے صحابہ حیران و پریشان ہیں، سارے صحابہ یہ سوچ رہے ہیں آج پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہو کیا گیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت آج ہم سے ہم کلام کر رہے تھے، ہم سے بات چیت کر رہے تھے، لیکن یہ اچانک آج ہو کیا گیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی کالی کملی کو اپنے کاندھے سے اتار کر آج فرش زمین پہ بچھا رہے ہیں۔ سارے صحابہ اچانک ہو گئے، سارے صحابہ پریشان ہیں کہ اے اللہ آج معاملہ کیا ہو گیا ہے، آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے، آج مصطفیٰ جان رحمت اپنی نورانی
चादर को आज जमीन पे क्यों बिछा रहे हैं? सारे सहाबा पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह आज मामला क्या है? आप नूरानी चादर को आज जमीन पे क्यों बिछा रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक सवाल करते हैं, हज़रत उमर सवाल करते हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा थोड़ी देर रुको, अभी तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं अपने चादर मुबारक को आज जमीन पर क्यों बिछा रहा हूँ। इतना कहना था, अचानक क्या नजर सहाबा की नजरें क्या देखती है? एक बूढ़ी औरत है जो अपनी नजरों को झुकाए हुई है और चली आ रही है। और आने के बाद जो है जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी काली कमली को बिछाया है, बिछाने के बाद जैसे वो औरत मुस्तफ़ा जाने रहमत के करीब पहुंचती है दौड़ के मुस्तफ़ा उनके कदमों को बोसा देते हैं और देने के बाद कहते हैं आप इस चादर मुबारक पे तशरीफ फरमा हो जाए। इतना कहना था। अब वो औरत जो थी अब उसे तो उस चादर पे बैठना था। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो चादर जो बिछाई थी उस औरत को बैठने के लिए बिछाई थी, लेकिन वो औरत जो आई थी अब उस चादर ततहीर पे बैठने के बजाय उस चादर को उठाती है और उठाने के बाद अपने लबों से चूमा करती है और चूमने के बाद अब वो औरत जब वापस चली जाती है अब सारे सहाबा सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह आप जो है रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए हैं, या हबीब अल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला ने यासीन का लक़ब अता फरमाया है, या रसूल अल्लाह आप मुसल्लम बन के आए हैं। इतना कहना था या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे, हज़रत आदम दुनिया में आए तो ये बशारत देकर गए मेरे बाद एक पैगंबर आने वाला है। हज़रत नूह आए वो भी ये बशारत दिए कि मेरे बाद एक पैगंबर आने वाला है। हज़रत ज़करिया आए वो भी एक बशारत देकर गए कि मेरे बाद एक पैगंबर आने वाला है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आए, आने के बाद ये बशारत दिए कि मेरे बाद एक पैगंबर आने वाला है। हज़रत ईसा मसीह आए, उन्होंने आने के बाद ये बशारत दी कि मेरे बाद एक अल्लाह का रसूल आने वाला है। लेकिन आपके आने से पहले सारे अंबियाए किराम यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सब आपके बशारत दिए और आपके मरातिब को बयान किया। या रसूल अल्लाह आज मामला समझ में नहीं आया कि आपके लिए पूरी दुनिया खड़ी होती है लेकिन आप एक तन्हा एक औरत के लिए क्यों खड़े हो गए? तो मेरे मुस्तफ़ा ने जवाब दिया ऐ अस्मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों यहाँ से एक लेसन लेके जाना, एक सबक लेके जाना कि अल्लाह के रसूल ने माँ बाप की अस्मत को क्या बताया है। इतना कहना था। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी होती है, पूरी कायनात उठकर खड़ी हो जाती है, आज वो पैगंबर वो रसूल जो है एक औरत के लिए खड़ा हो रहा है, एक रसूल एक औरत के लिए खड़ा हो रहा है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने बताया ऐ सहाबा सुनो वो कोई और औरत नहीं थी, वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मेरी माँ दाई हलीमा थी जिसकी आज़मत के लिए मैं खड़ा हो गया, जिसकी रिफात के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरा पैगंबर मेरा रसूल जब अपनी माँ के लिए खड़ा हो सकता है, उसके उम्मती है, अपने माँ बाप के लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकते? अपने माँ बाप के वफादार क्यों नहीं बन सकते? और मैं आपको एक हदीस पाक और सुनाता चलो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवालों अस्मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों आओ देखो माँ बाप की दुआएं किस कदर अपनी औलाद के हक पे कबूल हुआ करती है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जिस तरह से मुझ मोहम्मद की दुआ अपनी उम्मत के हक में कबूल होती है, उसी तरीके से माँ की दुआ उसकी औलाद के हक में कबूल हुआ करती है। मुसलमानों आओ मैं आपको बताऊं, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को कौन नहीं जानता? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी किया करते थे, अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे, अल्लाह से बातचीत किया करते थे, कोहे तूर पे जाके अल्लाह से बातचीत हम कलामी किया करते थे। यही मूसा कलीमुल्लाह है। एक मर्तबा का आलम है जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे पहुंचने के बाद अल्लाह से हम कलामी के और क्या हम कलामी के? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं ऐ रब्बे काबा मैंने सुना है कि जो दुनिया में जिससे ज्यादा मोहब्बत करेगा वो दुनिया से तो वो कल क़यामत के मैदान में वो उसी के साथ उठाया जाएगा, उसका हश्र उसी के साथ किया जाएगा। इतना कहना था। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं यार ऐ रब्बे काबा मेरा हश्र किसके साथ होगा? मेरा
हश्र किसके साथ होगा और मैं किसके साथ जन्नत में जाऊंगा। इतना कहना था। ऐसे मूसा कलीमुल्लाह हम कलामी करते हैं, गैब से आवाज आती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह तुम जानना चाहते हो तुम्हारा हश्र किसके साथ होगा, तुम किसके साथ जन्नत में जाओगे। हाँ या हाँ रब्बे काबा, मैं जानना चाहता हूँ मैं किसके साथ जन्नत में जाऊंगा और मेरा हश्र किसके साथ होगा। इतना कहना था। गैब से आवाज आती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह फला मकाम पे चले जाओ और फला मकाम पे एक कस्साब रहता है, एक चिकवा रहता है जो गोश्त को काट कर बाजारों में फरोख्त किया करता है। ऐसे मूसा कलीमुल्लाह अब कोहे तूर से वापस आते हैं। आने के बाद जो है अब उस कस्साब के करीब कस्साब को ढूंढते ढूंढते उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं, उसके दुकान के करीब पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उसी की दुकान पे आप बैठ जाते हैं। ऐसे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। ऐसे मूसा कलीमुल्लाह उसी कस्साब के दुकान पे बैठते हैं। बैठने के बाद अब जोहर का वक्त हुआ, वो कस्साब गोश्त फरोख्त कर रहा है। जोहर की नमाज ना पढ़ी, असर का वक्त हो गया, गोश्त फरोख्त कर रहा है, असर की नमाज छूट गई। मगरिब का वक्त हुआ, अब गोश्त को फरोख्त कर रहा है, गोश्त को बेच रहा है काट कर। मगरिब की वक्त भी गुजर गई। गुजरने के बाद अभी नमाज ना पढ़ा। ऐसे मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं कि अल्लाह मामला क्या है, मेरा हश्र इस बेनमाजी के साथ होगा, मेरा हश्र ये जो नमाज पढ़ने के करीब नहीं जाता, अल्लाह मेरा हश्र इसी के साथ होगा। अभी मूसा कलीमुल्लाह को पता नहीं है वो अल्लाह तबारक व तआला उसे किस कदर मर्तबा अता करने वाला है। ऐसे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। अब वो कस्साब अपने दुकान की शटर को गिराता है, गिराने के बाद गोश्त को कुछ लेता है, जो गोश्त बचा था अब वो अपने घर के करीब लेकर चलने लगा। ऐसे मूसा कलीमुल्लाह उसी कस्साब के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है उसी कस्साब के पीछे चल रहे हैं। चलते चलते ऐसे मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, ऐ कस्साब जरा ठहर जा, मैं इस बाजार में नया आया हूँ, मैं इस बाजार में अनजान हूँ, इस बाजार में मेरा कोई नहीं है, इस बाजार में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। वो कस्साब जैसे देखा पेशानी को देखने के बाद कहता है, आप अल्लाह के पैगंबर नजर आ रहे हैं, आप अल्लाह के रसूल नजर आ रहे हैं, आप अल्लाह के नबी नजर आ रहे हैं। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन रहने के लिए मुझे आप अपने साथ मुझे अपने घर लेकर चलिए। इतना कहना था। वो कस्साब कहता है, ऐ नबी अल्लाह के पैगंबर, ऐ अल्लाह के वली, ऐ अल्लाह के नबी, जो आप मेरे घर को आप बना घर पर समझ कर चलिए। मुसलमानों जरा गौर से सुन लो और सुनने के बाद आज का जो मुआशरा चल रहा है, आज हम और आप जो अपने माँ बाप के साथ सुलूक कर रहे हैं, उस सुलूक को देखना कि क्या माँ इसीलिए अपने पेट में 9 महीने तक तुम्हें लेकर तुम्हारी वसन को बर्दाश्त करती रही। जब तुम इस दुनिया में जन्म लिए, जन्म लेने के बाद जब माँ के पिस्ता माँ के खून को पीकर जो है तुम परमान चलते हो, और वही माँ जब तुम्हें जन्म देती है, जन्म देने के बाद जब तुम छोटे से बच्चे रहते हो, जब तुम बिस्तर पे माँ लेकर सोया करती है, और सोने के बाद जब एक जानिब पेशाब किया कर देते हो तो माँ दूसरी जानिब सुला दिया करती है। और फिर अगर गर्मी का मौसम हो, अगर माँ से कोई कह दे कि थोड़ा सा गर्मी है, बाहर निकाल के बच्चों को सो जाओ, तो वो माँ कहती है मेरा बच्चा छोटा है, हो ना हो कि मेरे बच्चे को सर्द लग जाएगी। वही माँ तुम्हारे जवानियों को, तुम्हारे बचपने को अपना बचपना समझकर तुम्हें परवान चढ़ाती है। ऐसे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़े को सुनने के बाद जब अपने घर जाना, अस्मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस से ये सबक लेकर जाना कि हम और आप अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, हम और आप अपने माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसे उनके साथ हम इखलाक पेश आ रहे हैं। मुसलमानों जो है ऐसे मूसा कलीमुल्लाह उस कस्साब के साथ घर जाते हैं, और घर जाने के बाद मूसा कलीमुल्लाह कस्साब के घर के बाहर बैठ जाते हैं। अब वो कस्साब गोश्त को लेकर घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद गोश्त को पकाता है। पकाने के बाद जब खाना तैयार हो जाता है, खाना तैयार होने के बाद ऐसे मूसा कलीमुल्लाह के पास आता है। आने के बाद कहता है, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप खाना अभी तनाउल करेंगे तो आपको तन्हा खाना पड़ेगा, अगर आप बाद में खाते हैं तो आपको मेरे साथ में खाना पड़ेगा। ऐसे मूसा कलीमुल्लाह को इतना कह के वो चला जाता है। फिर बाद में आता है। आने के बाद इसके मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, ऐ कस्साब ये बता, तेरे बात को मैंने समझा नहीं, तेरे मामले को मैंने समझा नहीं, ये वजह क्या है कि अगर मैं अभी खाऊंगा तो मुझे तन्हा खाना पड़ेगा, अगर मैं बाद में खाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। वो कस्साब कहता है कि
मेरे पास एक बूढ़ी माँ है जो अपने पैरों से उठ नहीं सकती है, अपने हाथों से अपने चेहरे को धुल नहीं सकती है, अपने हाथ से वो पानी पी नहीं सकती है, अपने हाथ से वो खाना खा नहीं सकती है। पहले मैं अपनी माँ को खाना खिलाऊंगा, पहले मैं अपने माँ को पानी पिलाऊंगा, पहले मैं अपनी माँ को जो है पानी खाना खिला के उसे बिस्तर लगा के सुला दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, जाओ, जब तुम्हारी माँ इतनी ज़ईफ हो गई है, तुम्हारी माँ इतनी बुजुर्ग हो गई है, तुम्हारी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, तो जाओ माँ से इजाजत लेकर आओ, मैं भी तुम्हारी माँ को देखना चाहता हूँ। वो कस्साब जाता है, जाने के बाद कहता है, माँ आपसे अल्लाह का पैगंबर मिलना चाहता है, आपसे अल्लाह का रसूल मिलना चाहता है। अब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, अब जो है आप अंदर जाते हैं और जाने के बाद वो कस्साब जाता है रसोई घर में, किचन में जाने के बाद बर्तन में सालन को परोसता है, सालन शोरबे को निकालता है, निकालने के बाद जो है अपनी माँ को अपनी गोद में बिठाता है, अपनी माँ को उठा के अपनी गोद में बिठाता है और बिठाने के बाद अपने माँ के चेहरे को धुलता है, अपने माँ को गलाला करवाता है, गलाला करवाने के बाद अब शोरबे में रोटी को बोरता है और रोटी को शोरबे में बोरने के बाद पहले अपने मुंह में डालता है, फिर अच्छी तरीके से अपने मुंह में डालने के बाद अच्छी तरीके से पिसाई करता है, अच्छी तरीके से चबा लेता है और चबाने के बाद फिर निकाल के अपनी माँ के मुंह में डालता है। जब माँ उसकी खा लेती है, माँ का पेट भर जाता है, तो माँ बेटा कहता है, माँ अब तुम्हारी वजह तुम्हारी जरूरतें पूरी हो गई है, अब मैं जाके अल्लाह के पैगंबर के साथ खाना तनाउल करूंगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हट जाते हैं, वो कस्साब हट जाता है। माँ कहती है, बेटा चिराग को बुझा दो। बेटा ने कहा, माँ ने मैंने चिराग को बुझा दिया। अब सुनो मुसलमानों कि माँ की दुआ अपने बेटे के हक में कैसे तो कबूल हुआ करती है, और माँ की जैसे दुआ कबूल होती है वैसे बेटे के हक में माँ की बद्दुआ भी कबूल होती है। तो सुनो, अब जब माँ ने फरमाया कि बेटा चिराग को बुझा दो, अब बेटे ने चिराग को बुझा दिया। माँ सवाल करती है, बेटा चिराग बुझा दिया? हाँ माँ मैंने चिराग बुझा दिया। अब जब चिराग बुझ गया, बुझने के बाद जो है अब माँ का जो आंचल है, अब माँ का जो भीगी हुई आंचल है, वो माँ उस अंधेरी कोठरी में दराज करती है और दराज करने के बाद जो है रब की बारगाह में दुआ फरमाती है, ऐ रब्बे काबा, मेरे बच्चे ने मेरी खिदमत को इस कदर की है, इसका आशिक किसी और के साथ ना करना बल्कि मेरे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करना। इतना कहना था, इतने में गैब से आवाज आई, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, तुमने देख लिया मैंने उसे नमाज से और रोजे से ज़कात से नहीं बल्कि उस कस्साब ने अपनी माँ की खिदमत की थी, इसीलिए मैं तुम्हारा हश्र उसी कस्साब के साथ करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, रब इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन ihसाना, अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। मुसलमानों, माँ तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर तुम यही चाहते हो कि हम जन्नत यहीं ख़रीद ले तो जन्नत मुसलमानों तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया है। तुम जन्नत और कहीं ना ढूंढो बल्कि खिदमत करके अपने माँ के कदम के नीचे जन्नत ढूंढो। रब इरशाद फरमाता है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न व सलूक का मामला करो, अच्छा बर्ताव करो। रब की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जो कुछ भी बयान हुआ, मौला हम सबको अमल के अमल खैर की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।